Hello everyone. I hope you guys are doing well. And today I am going to start with the Delhi air pollution case study. And it will be the last topic of Unit 5, that is environmental pollution. And this topic is going to be very important for your semester exams, right? हर साल आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रहता है that what are the reasons for the air pollution or increasing air pollution in the Delhi, and what are the possible health impacts, right? So I will try to cover all the aspects and uh, all the health impacts of Delhi air pollution, right? Causes and the effects, right? So starting with some if facts, uh, as you may have heard that according to a report of WHO, World Health Organization, जो वर्ल्ड की जो 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें से 21 सिटीज कहाँ हैं? इंडिया में, राइट? एंड ऑल्सो वी आर द थर्ड largest polluted country in the Asia after Pakistan and Bangladesh, right? So these are some facts, okay? And according to a report of WHO, हर साल almost 8 million deaths होती हैं worldwide because of air pollution. So here is some data. ठीक है, बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने आपको ये डेटा बताया. So coming to the causes of Delhi air pollution, ठीक है. As you know, हर साल हम सुनते हैं, न्यूज़ में आता है, and also we face it कि every year in the month of November, first और second week of November, जो air pollution की problem है वो suddenly बहुत ज़्यादा हो जाती है दिल्ली में, दिल्ली NCR में, we can say, right? So, what are the causes? I will try to cover it holistically, right? So, as you know, Delhi's pollution problem is also caused by the factor of animal agriculture, right? It is not the only reason. I will discuss some other reasons also. Okay. So one of the reason is animal agriculture. I will tell you what is animal agriculture and what are the impacts of intense animal agriculture, right? And also smog, right? And other harmful particles are produced by farmers burning their crops in other states since 2002, right? We will discuss this aspect in detail, right? About 80% of the agriculturally used land is used for animal agriculture. So animal agriculture can also be attributed as a factor in Delhi's air pollution problem. It is one of the reason, not the only reason. Okay, we will discuss all the reasons. So let's first discuss this animal agriculture. Animal agriculture क्या है और इसके क्या impacts होते हैं air quality पे, right? So what is animal agriculture? When we breed animals for the purpose of meat and dairy requirements at very large scale, right? जब एक ही जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक रीजन में बहुत लार्ज स्केल पे एनिमल्स की ब्रीडिंग कराई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ मीट एंड डेयरी रिक्वायरमेंट्स, तो इसको बोलते हैं एनिमल एग्रीकल्चर, राइट? तो लेट्स अज्यूम अगर किसी प्लेस पे, फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है
दिल्ली के सराउंडिंग्स में, राइट। और यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे एनिमल्स को ब्रीड कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ की इकोलॉजी पे, यहाँ के एयर क्वालिटी पे, यहाँ के एक्वेटिक इकोसिस्टम पे इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, लेट्स थिंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी एनिमल्स होंगे इनको फीड कराने के लिए आपको बहुत सारी क्रॉप्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारा फूड ग्रेन्स चाहिए इनको फीड कराने के लिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फॉरेस्ट लैंड होगी उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिजल्ट इनटू द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी आप कार्बन सिंक को कम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कार्बन स्टोर होता है आपने कार्बन सिंक को कम कर दिया, सो इट विल रिजल्ट इनटू द इंक्रीज एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये तो फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा, जब आप क्रॉप जो भी आप क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो कराएंगे, जो भी फीड के लिए यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, जो उसका क्रॉप रेजिड्यू होगा, ठीक है, जो भी स्ट्रॉ होगा उसको बर्न करेंगे, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे दे विल बी इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट विल इन टर्न रिजल्ट इनटू द एयर पोल्यूशन, इंक्रीज एयर पोल्यूशन, राइट। द थर्ड थिंग इज, जहाँ पे भी लार्ज स्केल एनिमल एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सर्टेन गैसेस होती हैं जैसे कि अमोनिया, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। एंड एट द सेम टाइम सल्फाइड्स लाइक H2S, इस तरह की कुछ गैसेस होती हैं जो विच ऑल्सो एक्ट एज एयर पोल्यूटेंट टू द सम एक्सटेंट। इनका भी वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ एनिमल एग्रीकल्चर अफेक्ट्स द एयर क्वालिटी of a particular area, ठीक है। So now coming to the other reasons, what are the other possible causes of the air pollution in the Delhi, ठीक है। और we can say जो smog episodes होते हैं, ठीक है, जनरली जो कि विंटर्स में होते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। So we will see all the possible reasons, right? So first of all, I will categorize these causes into the two parts. So the first cause or first type may be the natural reasons. So by saying natural, I don't mean that there are some natural factors which are contributing into the air pollution. I will explain it in detail, right? And second is anthropogenic. तो जो नेचुरल रीजंस हैं, इनसे मेरे कहने का मतलब है देयर मे बी सम नेचुरल सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल वेदर सिचुएशंस विच कैन फर्दर एनहेंस द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, ठीक है। वो ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट होंगी जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट में वो इंक्रीज होगा, या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो परसिस्ट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, राइट। तो ये जो नेचुरल रीजंस है ये क्या हो सकते हैं? सो इट कैन बी, और इन केस ऑफ दिल्ली इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द टोपोग्राफी of Delhi, right? Second is the weather condition, especially in winters, right? I will explain it in detail. So coming to the topography part. So as you know, before this, let me tell you a few things. As we know that air and water both are the ट्रांसबाउंड्री रिसोर्सेज, ठीक है। दोनों ही नेचर में कैसे हैं, ट्रांसबाउंड्री हैं, मतलब इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। एयर का आप जानते हैं, स्पेशली हम एयर की बात करें तो एयर का वर्टिकल मूवमेंट होता है एंड
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट, एयर का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस है अर्थ का और यहाँ पे कुछ जो भी एयर पार्टिकल्स हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगा, इनकी मिक्सिंग होती है, ठीक है, इस तरह से। इसको हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। आई विल नॉट गो इन सो डीप, बट थोड़ा सा समझाना जरूरी है कि जो ये मिक्सिंग होती है, जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है, इट लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। कि कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक पॉल्यूटेंट्स डाइल्यूट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल मिक्सिंग। और वी कैन से जो ग्राउंड लेवल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो जब भी सरफेस के पास जो एयर है, जब एयर हीट अप होगी तो लाइट होगी, ऊपर की तरफ रेज होगी, ठीक है, तो उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। एंड जो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्पेस खाली हुआ है, यहाँ पे जो एयर मास है आ जाएगा और इसकी वजह से वर्टिकल मिक्सिंग होगी, राइट। तो इट लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, राइट। ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसी को विंड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पोल्यूटेंट्स मूव होते हैं, इसको हम ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बिकॉज ऑफ विंड ब्लोइंग, जो एयर है वो एक एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करेगी एंड उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन एक स्पेस, एक जगह पे, एक एरिया में कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ दीज मूवमेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हेल्प करते हैं पॉल्यूटेंट्स के डाइल्यूशन में या फिर पोल्यूशन को कम करने में, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी यहाँ पे आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर पाएंगे यहाँ टोपोग्राफी जब मैं आपको बताऊंगी। तो टोपोग्राफी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लैंड का जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी, प्लेन है या माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफी कैसे डिफरेंट है दिल्ली की, ठीक है। तो जो दिल्ली है, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे प्लेन्स नहीं है, बट इट इज सराउंडेड बाय सम हिल्स, ठीक है। एंड दिल्ली इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली रेंज से सराउंडेड है दिल्ली, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस टोपोग्राफी, जो एयर पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्सेज, ठीक है, राइट। अभी जो सोर्सेज हैं ये, इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक, फॉर एग्जाम्पल vehicular emission, ठीक है, और बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है। और सोर्सेज नेचुरल भी होते हैं, बट यहाँ दिल्ली के केस में ऐसा कोई नेचुरल सोर्स तो है नहीं, जैसे कि यहाँ पे कोई वॉल्केनो नहीं है, ठीक है, कोई वॉल्केनिक इरप्शंस तो नहीं है, तो यहाँ हम सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करेंगे। तो वेहिकुलर इमिशन, आप जानते हैं जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे व्हीकल्स में फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं जनरली फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, और सीएनजी हो, ठीक है, ऑल दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, राइट। और one more type of emissions can be industrial emissions, very important, industrial emissions, ठीक है। तो दिल्ली के केस में, दिल्ली एनसीआर में आपको ये तीनों तरह के सोर्सेज देखने को मिलेंगे। एज यू नो, दिल्ली में कहीं कहीं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी हैं, जैसे कि ओखला, राइट, जबगढ़। तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जिनसे कि इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं। एंड जनरली इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं कोल, ठीक है, कोल और सम अदर फॉसिल फ्यूल्स, राइट। so it becomes the major source of air pollution, right। vehicular emissions आप समझ ही गए, जो भी फ्यूल होगा, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो एमिट होते हैं उनको हम व्हीकल वेहिकुलर एमिशन बोलेंगे।
एंड एज वी सी कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है। सो ये काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। आप जानते ही हैं कि क्रॉप रेजिड्यू क्या होता है। जो भी आपको पता है कि जो हरियाणा, पंजाब एंड यूपी, जो भी सराउंडिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत लार्ज स्केल पे पैडी का प्रोडक्शन होता है। एंड एज यू नो, पैडी इज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप मतलब मानसून सीजन में ग्रो कराते हैं एंड नवंबर तक इसको हार्वेस्ट करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, राइट। एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हार्वेस्टिंग है इसकी लेट हो जाती है पैडी की, और पानी को जो वाटर का यूज होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो लेट हार्वेस्ट करते हैं फार्मर्स, और उसकी वजह से ये जो हार्वेस्टिंग है नवंबर तक पहुंच जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग जो ग्रेन्स होते हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद जो जो स्टॉक बचता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है, या फिर इसको पराली भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। सो जनरली होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस है कि वो जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको फार्म में ही बर्न कर दें, ठीक है। और एक ऐसा नोशन भी है कि फार्म में बर्न करने से जो न्यूट्रिशन सॉइल सॉइल का जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी भी, उनका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो जनरली इस क्रॉप रेजिड्यू को फील्ड में ही बर्न करते हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग ऑफ दिस क्रॉप रेजिड्यू क्या इमिट होते हैं वहां से? एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। एंड एज यू नो, एयर इज ट्रांसबाउंडरी इन नेचर, तो ये जो एयर का मूवमेंट होता है ये दिल्ली की तरफ होता है, ठीक है। एंड नाउ हेयर कम्स द टोपोग्राफी इनटू द पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे टोपोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड द वेदर कंडीशन, राइट। सो व्हेन दीज पोल्यूटेंट्स मूव टुवर्ड्स दिल्ली, ठीक है, एंड एज यू नो कि दिल्ली है, इट इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स, राइट। So, and plus the winter situation in नवंबर, ठीक है। एज यू नो, जो नवंबर में क्या होता है कि विंटर्स थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द विंटर जो नाइट टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो विंड की जो स्पीड है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेदर सिचुएशन होता क्या है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। सो दीज हिल्स, स्मॉल हिल्स, अरावली रेंजेस ऑल्दो बहुत हाई नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट it restricts the horizontal movement of air, right? And because of decrease in atmospheric temperature, जब भी atmospheric temperature कम होता है तो आपको तो क्या होता है कि जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है एयर की, ठीक है, एयर की वर्टिकल मिक्सिंग होती है वो भी एक हद तक कम हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मिक्सिंग दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइल्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ऑल दीज सिचुएशंस, यू कैन से natural and anthropogenic, all these situations contribute to the increased air pollutants in winter in the Delhi NCR region, ठीक है। आई होप आपको सिचुएशन क्लियर होगी, राइट। सो दीज आर द पॉसिबल रीजंस, ठीक है। एंड अदर रीजंस यू हैव ऑलरेडी सीन लाइक vehicular emission and industrial emissions, ठीक है। So now coming to the health impacts of Delhi air pollution, right? हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के? तो यहाँ पे कुछ जो हेल्थ इम्पैक्ट्स लिखे, ये दिस इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, ठीक है। जब भी एयर पोल्यूटेंट्स के साथ आपका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा
तो ये हेल्थ इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, इरिटेशन इन आईज। जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और उन्होंने फेस किया है अगर ये पोल्यूशन प्रॉब्लम, तो उन्होंने फील किया होगा कि आईज में इरिटेशन होता है। अस्थमा एंड एलर्जी के जो केसेस हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो होने के चांसेस रहते हैं। वाई? एज यू नो, एयर में जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो कि बहुत हद तक vehicular emission से आता है, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलेट मैटर, जो कि दो प्रकार के होते हैं, PM2.5 एंड PM10, तो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। जो PM2.5 होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। दे कैन क्रॉस द alveolar membrane एंड कैन रीच टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये लंग्स में जाके इट कैन कॉज लंग कैंसर, right? And because this PM2.5, it is carcinogenic in nature. Carcinogenic means cancer causing, right? It can cause cancer, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है, right? And in turn, if these particles, if this PM2.5 reaches into the blood stream, then it can also cause heart disorders, cardiac disorders, right? इसके अलावा lung infections, right? So all these are the health impacts of long-term exposure, right? So now coming to the control measures, okay? Till now we have seen what are the causes of Delhi air pollution, and then health impacts, and now coming to the control measures, ठीक है, क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ठीक है, एट ऑल फ्रंट्स, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिसी लेवल, ठीक है, एंड इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो कि दिल्ली में जो भी थर्मल पावर प्लांट था, एक बदरपुर में एक थर्मल पावर प्लांट था, वो शट डाउन कर दिया गया है, ठीक है, 15 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। एंड इसके अलावा कि जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, इट विल लॉन्च एन ऐप टू मॉनिटर द बर्निंग ऑफ लीव्स, ठीक है, कि जो ओपन बर्निंग होती है वेस्ट की, सच एज लीव्स, ठीक है। सो इसको मॉनिटर किया जाएगा। एंड देन ये तो एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी मीन्स जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसको कैसे, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। तो पीपल शुड स्टे एट होम एज मच एज दे कैन, ठीक है, एंड दे शुड ट्राई वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। ये तो एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हो गई। अदर देन दैट, as per faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India scheme, it is expected by 2030 all the vehicles with a battery, electric and hybrid, ठीक है। As you know, ये पॉलिसी लेवल पे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल्स, इनको प्रेफरेंस दिया जाए। हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं? vehicles which can run on electricity plus fuel, ठीक है, स्विच किया जा सकता है इनको। हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एंड ऑल कंबशन इंजन्स व्हीकल्स विल बी अपग्रेडेड टू BS6। ये क्या होते हैं? ये नॉर्म्स होते हैं, जो कंबशन इंजन्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, BS1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो वी हैव जम्प्ड डायरेक्टली फ्रॉम BS4 टू BS6, ठीक है। इसके अलावा एनी व्हीकल ओल्डर देन 10 to 15 years और बिलो BS6 emissions विल बी बैंड, ठीक है। तो ये पॉलिसी है कि 10-15 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको
स्क्रैप किया जाए, ठीक है, इसको व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी बोलते हैं। या फिर जिनका जो कम्बशन इंजन है वो BS6 से बिलो है तो उनको बैन किया जाए, ठीक है। Next is by 2021 the entire Delhi metro is expected to be 100% powered by solar energy, ठीक है। तो we are promoting renewable energy at all fronts, ठीक है। तो सोलर एनर्जी से रन कराई जाए मेट्रो, ये भी एक इनिशिएटिव चल रहा है। नेक्स्ट इज बैंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली टू एलिवेट पोल्यूशन। आपने देखा ही होगा जो भी पोल्यूशन या जो स्मॉग एपिसोड्स हैं जनरली विंटर्स में ही होते हैं, जनरली ये दिवाली के बाद होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पिछले पास्ट 2-3 ईयर से बैन लगा रखा है फायर क्रैकर्स पे, ठीक है। So these are the control measures which can be taken to control the air pollution or inside the Delhi NCR, ठीक है। So I hope आपको ये clear हो गया होगा। I have tried to cover it very holistically, and still if you have any doubt then you can comment it in the comment section, ठीक है। We will try to respond to your queries. Thank you.